Hello, a very good evening to one and all. And my name is Nigel D'Souza, and I'm the host of Tariq Petari. And thank you so much, each and every one of you, for watching the earlier video. And you may have seen that it is all about food or cuisine from North India, right? And this entire season, this entire theme, this entire month has been super special. We've covered Uttarakhand, we've covered Rajasthan, and tonight we have a very special guest coming from an other state of India, from the north. So before that, I would just like you to stay tuned till the very end. We have many exciting things coming up your way. We have a recipe presentation by the guest, and we have a live Q&A session. Any questions that you have around the cuisine or around the culture of the state. Okay, so Tariq Pe Tariq has been very special. It goes live every Sunday, and we bring in different guests, unique with different expertise. And uh, tonight's guest is also very special. Okay, his name is Akash Jain, and he's representing his brand RS Magical. Okay, so let me just give you a little insight about RS Magical. So RS Magical was created, in honor of the experience, the food experience of his mother and his mom-in-law. It's a very, very, very special brand, all about spices. And Akash, who's going to join us this evening, is one of the homegrown chefs. Okay, so without any further delay, let us call upon Akash Jain on screen, and he will be representing tonight Delhi. Okay, a part of India, a super, super, super crazy state with so many things happening there. So let us get in a conversation with him, and let us try to get as much as we can from Akash about Delhi, about his experience there, about the food background, any questions you have around his presentation that he's going to do around the Delhi food culture or anything. Be ready to ask him. So let's call Akash on screen right now, adding him to screen right away. Hey. Hello. Hello. A very good evening, Akash. Very good evening. Namaste, Vadakkam. Hello, Namaste, everybody. namaste. How are you? I am good. I'm good. It's such a pleasure to have you on the show, Akash Jain. You look your part, beautifully set up. I really love the setup. So, firstly, Akash, thank you so much for accepting the invitation, for coming forth, and wanting to give out a part of your culture, from the Delhi cuisine, a part of Delhi culture with our viewers. Okay, so before we do that, Akash, I've introduced a little bit about yourself, but I would really love if you could speak a few words about yourself, about anything you want to talk about before we start the main part of this evening, Akash. Sure. Thank you, Nigel, so much to have me. It's really a pleasure is also here. Namaste, everybody. So, hello again. And my name is Akash, as Nigel told you. मैं चांदनी चौक में ही पला बड़ा हुआ हूँ. So basically born and brought up in Delhi, Chandni Chowk, core from my heart and from my taste buds. शुरू से ही parents वहाँ पर थे, and now we moved a little bit further ahead, but still around in Delhi only. I personally have moved to Dubai, but all my family is in the various parts of India and Japan and Dubai. So that's us. Now, just a little bit about RS Magical. So RS Magical is some just thought of to be honest, that it has been created was going a lot, but now after the lockdown, we thought of having our moms online and their cuisines, their specialities. It's a 40 years of experience both of them have, and in total that means 80 years of experience. We are containing with ourselves of Indian traditions, spices. And both of them, by the way, belong to Chandni Chowk in Delhi from the beginning. Crazy. So that means that that I have whole Chandni Chowk in me.
and you can see all the setup here. So we'll without any wasting time, I'll start. So I'm going to do a few dishes today. One of them is chola kulcha, Nigel, and everybody. Okay. And second one is within chola, but it's a different flavor of it. It's matra kachori. So it's within two. You know, the matra is very famous of Delhi. Say, everybody goes there. Do not come back without having chola kulcha from Delhi. So that's our core recipe. You know, this big matra they will keep and they will sell on the streets, and it's all on the streets. Yeah, the restaurant will not Okay. taste the same. I can bet you on that. So it's all about streets. Chandni Chowk is really close to my heart always. You know, it's one of this one street which has all the religions in there. You will find a church, you'll find a mosque, you'll find a temple, Jain temple, you'll find a Hindu temple, you'll find even a Sikh Gurudwara. So it's a really an Wow. amazing setup which we had, and that is how we have been brought up. You know, diversified and you know, with peace and all equality. So that will be my first few dishes. The second one I'll do is kulle. Kulle is very famous again from Delhi 6 Nigel. वो बहुत ही healthy होते हैं, fruits के बने हुए होते हैं again, and vegetables Okay. के होते हैं. It's very healthy, but it's spicy, so it will get your taste buds also tested. So, and then I have few surprise elements about some spices which are from Aris Magical again. 80 years of experience of my mom's is coming all together. Some spices I'm gonna share today. Wow. So we'll see all live today. So I think without wasting any time, maybe shall we proceed, or do you have any questions, Nigel? Nothing as of now. I've just told our viewers that at the end of it all, we are going to have a live Q&A session. So whatever the questions they have around like Delhi cuisine or anything that you're going to show this evening, they would address it right away to you. So I would take myself off screen, and you have the platform all for you now. All the best. Okay, thank you, Nigel. Hello everybody who's joining late. जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से ज्वाइन कर रहे हैं, जो थोड़ा लेट आए हैं, अब मैं उनके लिए वापस से स्टार्ट करने वाला हूँ. सबसे पहले अब हम मटरा कुलचा और मटरा कचौड़ी बनाने जा रहे हैं लाइव ऑन द स्क्रीन नाउ. तो मैं अब जा रहा हूँ किचन की तरफ और आई एम गोना जस्ट डू मटरा. तो अब मैं गैस शुरू करने वाला हूँ एंड वी आर गोना स्टार्ट नाउ. ये पूरा सेटअप मैंने पहले से करके रखा है. मैंने कुछ चीजें पहले से करके रखी है बिकॉज मैं सब कुछ एकदम से लाइव नहीं दिखा सकूंगा. सो आई हैव गॉट मटरा. ये मटरा बहुत ही इजीली अवेलेबल है दिल्ली में, तो आप मटरा खरीद सकते हैं. मैंने 2 छोटी कटोरी मटरा की 6-7 कुकर की सीटी लगा के रखी है. बट आप इसको रात को भिगो दीजिएगा, उसके बाद 6-7 सीटी सुबह लगाइएगा. उसके बाद मैं अब जा रहा हूँ मटरा को थोड़ा सा छौंकने, विच मीन्स बेसिकली कि छौंकने का मतलब है कि थोड़ा सा उसमें एक वो रहेगा कि एक टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा उसका, एंड प्लस वी नॉट गोना हैव एनीथिंग हाउ टू से जिससे एसिडिटी बनती है. सो देयर आर स्पाइसेस एक्चुअली इन दिल्ली में. आपको एक बात याद रखना पड़ेगा, वहां की चाट खा के आपका पेट नहीं खराब हो सकता, और अगर हो रहा है तो आपका वो किसी और चीज से हो रहा है, या फिर किसी को चाट वाले ने सही से नहीं बनाया. तो इसलिए मैं आपको सारे चीजें बताने वाला हूँ जो जरूरत है. तो सबसे पहले हम मटरा को थोड़ा सा छौंकने वाले हैं, फ्राई करने वाले हैं. उसके लिए मैंने अराउंड 25 ग्राम्स बटर लिया है, जो आपके 100 ग्राम की टिक्की आती है उसका चौथाई पार्ट लिया है, और वो मैंने इसमें रख दी. अब सबसे जरूरी बात आती है आपकी हींग की. हींग बहुत ही जरूरी. हींग एक फ्लेवर होता है और एक एसिडिक आपका वो भी इसका काटता है, तो आपको ये हींग बहुत ही जरूरी है. पिंच ऑफ हींग, सिर्फ चुटकी भर हींग की जरूरत है इसमें, ज्यादा नहीं. मैंने गैस थोड़ी सी हल्की कर दी है ताकि जल ना जाए मेरा मक्खन और मेरी हींग. और अब मैं जा रहा हूँ जीरा डालने. जीरा अगेन क्यूमिन सीड्स, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस इज अगेन एन इंपॉर्टेंट नॉट ओनली फॉर फ्लेवर बट अगेन इट हैज द एसिडिक रेगुलेटर्स जो नेचुरल होते हैं, वो सब होता है. तो आपको ये रखना पड़ेगा. मैं 2 डालने वाला हूँ. ओके, 1.5. देखते हैं कितना बनाएंगे अपन. अब इसके बाद मैं सीधे छोले खोलने जा रहा हूँ, जो मैंने अगेन 2 कटोरी में और 2-3 ग्लास पानी में हिसाब से इतना. ये देखिए लिक्विड मैं भी आपको दिखाने वाला हूँ कितना लिक्विड हुआ है. ये देखिए, इसका आपको पानी अलग नहीं दिख रहा है, और ये बिल्कुल आपका ऐसे फ्लोटिंग भी नहीं है और बिल्कुल थिक भी नहीं है. सो इट्स मीडियम. तो आप वैसी ग्रेवी रखिएगा. तो अब मैं डालने जा रहा हूँ सीधे छोले.
अब मैं ये सारे नहीं बनाने वाला हूँ, मैं आधे ही बनाने वाला हूँ। देखिए सारे बनाने में थोड़ा टाइम लग जाएगा और मुझे नहीं लगता कि आपके पास इतना टाइम है। मेरे ख्याल से आपको कल भूख लगने वाली है और कल आप ये बनाने वाले हो। तो अब ये मैं आपके छोले थोड़े से मैंने इसको भून दिया है, छौंक दिया है, किसी की लैंग्वेज में, यूपी की लैंग्वेज में भून दिया है। तो मैं पूरा इसको अच्छे से करने जा रहा हूँ। चलिए जब तक ये बन रहा है तो मैं आपको एक और बात बताऊं, जो आपकी नई सड़क है, चांदनी चौक है, वहां पे आपको इतने बड़े बड़े गोल्डन पतीले दिखेंगे और वो कोई स्ट्रीट पे बैठा होगा, वो छोले कुलचे का ही होता है और वो ऐसे ही बनाते हैं छोले कुलचे। तो अब हमने ये बना लिया, थोड़ा सा गैस तेज करने वाला हूँ। हल्का सा आप देखेंगे थोड़ा से गर्म होने शुरू हो जाएंगे, इनमें हल्की सी उबाल आना शुरू हो जाएगा, तब मैं जाके इसको रोकूंगा। और उसके बाद अब मैं इसको अब मैं उससे पहले एक्चुअली डालने वाला हूँ उसमें कहीं कहीं हिंट्स, जो आपको एक्चुअली लगता होगा कि ऐसे चटपटे कैसे बन जाते हैं, सिर्फ मसालों से ही नहीं बनते। सिर्फ मसालों से ही नहीं बनते, आपको ये चीज याद रखनी पड़ेगी कि जो आपकी चाट है वो सिर्फ मसालों का नहीं, उसमें बहुत सारे कॉम्बिनेशन होते हैं, जैसे कि चटनियां होती हैं। मैं वापस इसको मीडियम पे करने वाला हूँ, लेकिन मैं इसमें चटनियां डाल रहा हूँ। इसमें चटनियां होती हैं, नींबू होते हैं, तो वो आपका पूरा मिक्स होता है। चाट इज नॉट इजी ऑल्सो, बट ये अगर आप पूरा ध्यान से देखेंगे तो आपको इजी लगेगा, कोई इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप ये घर पे भी आराम से बना सकते हैं। लॉकडाउन का टाइम है अभी, ज्यादातर घर पे ही रह रहे हैं, तो इसलिए हम घर पे ही ज्यादा बनाना प्रेफर करेंगे। ये मैं डालने वाला हूँ अभी ग्रीन चटनी। ओके, दिस इज नॉर्मल ग्रीन चटनी जो आप घर में बनाते हैं, आपको कोई ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। इसमें अच्छे से ग्रीन चटनी जो आपकी धनिया की होती है वो बना के रखिएगा। और मैंने अराउंड इसको 4 टेबल स्पून डाल दिया। अब एक और एलिमेंट मैंने क्या करा हुआ है, यहाँ पे इमली का जो पानी है वो यहाँ पे बना के रखा हुआ है। इमली को भिगो के रख दिया था पानी में, और उसका पानी मैंने बना के रखा हुआ है। ये देखिए इसकी लिक्विडिटी ऐसी होती है, एकदम पानी की तरह होता है ये। गर्म पानी में इमली को रख दीजिए, उसको चूर के, उसके बाद छान लीजिए इसको आराम से, और वो हम इसमें अब डालने वाले हैं। ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। सिर्फ नींबू से जो है वो खटास आता है, लेकिन हमें खटास नहीं चाहिए, हमें टेस्ट चाहिए। तो नींबू भी जाएगा इसमें, ऐसा नहीं कि नींबू नहीं जाएगा। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। अभी मैंने इमली का पानी डाल दिया इसमें, मैं थोड़ा सा मिक्स कर दूं बिफोर पुटिंग एनीथिंग एल्स। अब देखेंगे आप, कलर थोड़ा थोड़ा वो चाट वाले की तरह आना शुरू हो रहा है मेरा। आएगा, अभी आएगा, धीरे धीरे आएगा। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक। अब मैंने जो छोले उबाले थे उसको नमक और हल्दी में उबाले थे। मैंने थोड़ा सा नमक, 1 चम्मच नमक और थोड़ा सा हल्दी उसमें डाल के, छोटा चम्मच जो होता है अपना नमक का और आधा चम्मच हल्दी का, दोनों डाल के उबाले थे अच्छे से। तो हल्दी से क्या होता है, एक तो आपका इम्यूनिटी भी होती है उससे, और थोड़ा सा अगेन वो एसिडिक फ्लेवर, बहुत जरूरी होते हैं ये सब चीजें डालना। अब मैं डालने जा रहा हूँ नमक, थोड़ा सा नमक, देखिए हाफ ही डाल रहा हूँ मैं, ठीक है, बिकॉज अब मैं आपको एक बहुत ही सीक्रेट चीज बताने वाला हूँ दिल्ली 6 के बारे में। दिल्ली 6 में अगर आप देखोगे तो वो लोग टेबल सॉल्ट बहुत ही कम यूज करते हैं। उनका मेन यूजेज होता है ब्लैक सॉल्ट में। तो इसीलिए ब्लैक सॉल्ट बहुत जरूरी है, और ब्लैक सॉल्ट ही ज्यादातर क्वांटिटी में आप देखेंगे चाट वाले के, हमेशा ब्लैक सॉल्ट और ये वाला नमक मिला हुआ होगा हमेशा। इसीलिए आपको लगता है यार यार इसका नमक तो सफेद नहीं होता, ये इसका टेस्ट कैसे जा रहा है, फिर नमक कैसे जा रहा है। वो इसलिए होता है क्योंकि उसमें ब्लैक नमक होता है। अब वो लोग क्या करते हैं, वो लोग साबुत लेते हैं, मैंने साबुत नहीं लिया, मैंने पिसा हुआ ब्लैक नमक लिया है। सो दैट वाज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं थोड़ा सा नमक मिलाने जा रहा हूँ। गैस हल्की कर दी है मैंने थोड़ी सी, बिकॉज अभी छोले हो गए हैं ऑलमोस्ट। ज्यादा देर नहीं सिखाना है, ये सिर्फ एक छौका मारते हैं, जैसे अपन दाल में छौका मारते हैं किसी चीज में, बस ये सब छौका मार रहे हैं। लेकिन अब मैं कुछ और करने जा रहा हूँ इसमें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, विच इज जिंजर, अदरक, पिसी हुई अदरक। ना इसको आप अभी डाल सकते हो या फिर आप इसको छौके के टाइम में डाल सकते हो। मैं छौके के टाइम इसलिए नहीं डालता हूँ, थोड़ा सा काला पड़ जाता है, तो ऊपर से डालने में वो फ्रेशनेस रहती है। और हरी मिर्च, और ये खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये जो मैं एलिमेंट डाल रहा हूँ हरी मिर्च, ये जरूरी नहीं है कि आप हमेशा ही डालें। बच्चों के लिए, अगर आपको ये सिर्फ बच्चों के लिए रखना है, तो अभी इसमें मैंने 2 चीजें ऐसी हैं वो नहीं डाली हैं, वो है हरी मिर्च और वो है छोले का मसाला। और इसलिए अगर आपको वो डालना है डालिए, नहीं डालना है मत डालिए। क्योंकि अगर आपको बच्चों का सिर्फ नमक नींबू का बनाना है, जो हम भैया से बनवा के लाते हैं कि भैया एक नमक नींबू का निकाल देना बच्चों के लिए, वो अलग रखें। थोड़ा सा मिक्स करने जा रहा हूँ। और अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एक ऐसा एलिमेंट जो एक्चुअली अभी हमने लॉन्च नहीं करा है,
बट आपको दिखेगा थोड़े दिनों बाद हम आर एस मैजिकल से इसको निकालने वाले हैं। ये है हमारा होम मेड छोले कुलचे का मसाला। ऑब्वियसली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, ये हम आपको अवेलेबल भी करेंगे मार्केट में। अभी के लिए फिलहाल के लिए आप थोड़ा वेट करिए इसके लिए मार्केट में आने के लिए, बट एक ये बहुत ही हम इंपॉर्टेंट एलिमेंट निकालने वाले हैं। ये देखिए मैंने ये कितना लिया है, 1 स्पून। जो अपना मसाले का चम्मच होता है उसको 1 स्पून ही डाला है मैंने अभी, बिकॉज ये बाद में भी डलेगा। अभी ये सिर्फ प्रिपरेशन हुई है, अभी तो इसको जब हम ड्रेसिंग करेंगे सर्विंग करेंगे बहुत ही बढ़िया से करेंगे, एकदम चाट वालों की तरह करेंगे। हाँ मेरे पास पत्ते नहीं है, पत्तों में खाने का मजा अलग होता है, वो खुली हवा में थोड़ा सा भैया लगाना, थोड़ा सा स्पाइसी करना, थोड़ा सा ये करना, पत्ते में थोड़ा नींबू डालना, वो सब नहीं है। बिकॉज अब हम थोड़ा घर में ही बना रहे हैं ये सब, तो वो हम पत्ते से नहीं और घर पे ही बनाएंगे। और यही मेरी आपको भी सलाह है, ये घर पे ही बनाइए ताकि आपको बाहर ना जाना पड़े और आप घर पे सेफ रहे, सुरक्षित रहे और अपना सोशल डिस्टेंसिंग और बाकी सारी चीजों को फॉलो करते रहे। अब ये छोले ऑलमोस्ट रेडी हैं, मैं थोड़ा सा इन्हें सेकने वाला हूँ ताकि इनका फ्लेवर अच्छे से मिक्स हो जाए। और इसमें अब एक और एलिमेंट डालने वाले हैं हम, नींबू। मैंने जैसे कहा था कि नींबू भी बहुत जरूरी है, इमली मैंने डाल दी है, ये मैंने नींबू डाल दिया। मैंने पूरा आधा नींबू नहीं डाला है, नींबू अभी बहुत ही बढ़िया आ रहे हैं, ठंड हो रही है, बढ़िया नींबू बड़े बड़े आ रहे हैं, दुबई में भी पहुंच रहे हैं इंडिया के नींबू। तो ये हमारे लिए खुश नसीबी की बात है कि एक्चुअली हमें जो है सब्जियां वगैरह आराम से यहाँ पे मिल जाती हैं। और ये इंडिया का ही नींबू था बाय द वे, मैं ऐसे ही बोल रहा था कहीं आपको लगे। तो चलिए अब ये हो गया, इसमें उबाल आना शुरू हो गया, यानी ये बन चुके हैं, ये गर्म भी हो चुके हैं और एकदम बन चुके हैं। अब इसको दो तरीके हैं, एक तो मैं अभी सीधे सर्व करने वाला हूँ बिकॉज मेरे को आपको दिखाना है, लेकिन आप इसको आराम से कैसरोल में रखिए जब आपके मेहमान आने वाले हो, जिसमें 1-2 घंटे गर्म रहता हो, और आप वहां से बना दीजिए सीधे। आपको वापस गैस पे आने की जरूरत नहीं है, इतना बढ़िया आइटम है छोले कुलचे और बटरा कचौड़ी कि आप सोच नहीं सकते कि आप आराम से घर पे बैठ के अपने डाइनिंग टेबल में उनके मेहमानों के सामने बना के खिला सकते हो, उनको किचन में जाने की जरूरत ही नहीं है। तो चलिए फिर मैं बनाना शुरू करता हूँ। मैं बैठ जाता हूँ थोड़ा। अब मैं थोड़े से आपको दिखाता हूँ ऐसे कैसे छोले बनेंगे। अब मैं सबसे पहले आपको कचौड़ी वाले बना के दिखा रहा हूँ, उसके बाद में आपको दूसरा बना के दिखाऊंगा जो कुलचे के साथ हो। तो देखिए ये मैंने डाला आर एस मैजिकल का मसाला प्लेट के ऊपर, सीधे प्लेन प्लेट पे। जो भैया होते हैं वो क्या करते हैं, वो पत्ते पे डालते हैं, हम प्लेट में डाल रहे हैं सीधे, तो यही फर्क है और कोई फर्क नहीं है। ये मैंने अच्छे से मसाला अराउंड 1/2 स्पून डाल दिया है, छोटा स्पून जो मसाले का स्पून होता है, नॉट टेबल स्पून, टी स्पून जो होता है वो वाला। और अब मैं इसके ऊपर डालने वाला हूँ हमारे जो छोले, बढ़िया धुआं आ रहा है एकदम गर्म, दिख रहा है आपको, ये मैंने डाल दिया। ठीक है, ये काफी है, अभी एक कचौड़ी के लिए बनाऊंगा मैं, ज्यादा नहीं। ठीक है, तो अब ये हमारा इतना सेट हुआ है। अब इसके बाद हमें थोड़ी सी इसकी ड्रेसिंग अच्छे से, थोड़ा अच्छा तो लगे यार, अभी तो बहुत प्लेन प्लेन लग रहा है, ऐसा लग रहा है भैया ने कुछ डाला ही नहीं है, भैया कुछ तो डाल दो। तो भैया ने अब क्या करा, ये थोड़ी सी हरी मिर्च डाल दिया आपके लिए, अब थोड़ा सा भैया ने अदरक डाल दिया, थोड़ा आपको थोड़ा ड्रेसिंग में मजा आएगा थोड़ा सा। अभी मैंने इतना ही करा है। अब मैं इसके बाद करने वाला हूँ थोड़ा सा अनियन। ठीक है, अभी मैं अनियन डालने वाला हूँ। अब देखिए बात इतनी सी है कि मैं स्पून नहीं यूज कर रहा हूँ, ये सब चीजें हाथ से ही डलती हैं बढ़िया, तो इसको आप अंदाजे से हल्का हल्का ही ऊपर डालना है, ज्यादा नहीं डालना है। ये देखिए, अगर आप में से कोई टेबल स्पून वाला ही यूज करने वाला है तो आप इसमें समझ लीजिए 1 चम्मच डालना है। ठीक है, अभी तो मैंने डाला है प्याज, अब मैं इसके बाद डालने जा रहा हूँ टमाटर। अब इसमें क्या है, घर में रहने में ये फायदा है, जो भैया है वो टमाटर प्याज नहीं डालते ज्यादा, वो थोड़ा कंजूसी से डालते हैं, हम अच्छे से भी डाल सकते हैं, हम इसको अलग से सैलेड में रख सकते हैं, तो उसमें भी कोई टेंशन नहीं है। और मजे की बात, बच्चों को आराम से खिलाइए, चटपटा खाना घर पे बैठ के, क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। बच्चे भी कहते हैं बाहर का खाना है, बाहर का खाना है, अरे हम घर पे बना के दिखाएंगे उनको। अभी मैं वापस से छोले का मसाला ले आया हूँ, हल्का सा ऊपर से मैं स्प्रिंकल करने जा रहा हूँ।
बहुत ही ज्यादा नहीं करा है मैंने, बहुत हल्का सा करा है, सिर्फ उसको ड्रेसिंग के लिए, और कुछ भी नहीं है। अब ये मैं डालने जा रहा हूँ आपका थोड़ा सा नींबू। पहले धनिया चला गया था, कोई नहीं, फिर नींबू डालेंगे। ये नींबू बहुत ही जरूरी होता है। अब इसके बाद अब मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या रह गया है। हरी चटनी। अब क्या हो गया है, घर गए हुए बहुत टाइम हो गया, तो डांट पड़े हुए ना घर पे बहुत ही ज्यादा टाइम हो गया, तो मैं कई चीजें बार बार उलट सुलट कर देता हूँ। तो उसमें क्या होता है, वो मैं आगे पीछे कर देता हूँ। चटनी आप शुरू में भी डाल सकते हो, बाद में भी। तो कोई नहीं, अब मैं थोड़ा सा इसके ऊपर ही चटनी डाल देता हूँ। अब एक होता है जिन लोगों को बहुत ही मीठी चटनी पसंद है, आप डाल सकते हैं मीठी चटनी, इसमें बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। मुझे इन जनरल दिल्ली सिक्स का हूँ मैं, प्योर एकदम, मेरे को स्पाइसी खाना चाहिए होता है, तो मैं मीठी चटनी इसमें नहीं डालूंगा। लेकिन मीठी चटनी मेरे पास तैयार है, अगर आपको खानी है और अगर आप मेरे भी घर पे होते तो मेरे पास बिल्कुल रेडी थी। ये देखिए, ऐसा नहीं है कि मेरे पास नहीं। तो मैंने इसमें थोड़ी सी हरी चटनी डाल दी है, मैं इसको हल्का सा धनिया डालने वाला हूँ, इसको पूरा ड्रेसिंग करना होगा। धनिया थोड़ा सा अच्छे से डालेंगे, धनिया से क्या होता है, एक फ्रेशनेस आती है आपके हर चीज में। तो धनिया तो बहुत ही जरूरी है हमारे इंडियन खाने में, बिना धनिया के तो भैया हो ही नहीं सकता। तब तक भैया धनिया ना डाले, कुछ ना डाले तो मजा नहीं है। तो अब मैं आपको इसको दिखाने वाला हूँ कचौड़ी के साथ। अब मैंने ओवन में पहले से कचौड़ी गर्म करके रखी हुई है एक। ये देखिए, ये खस्ता कचौड़ी है, नॉर्मल। अब ये हमारी जो है आपकी भाग की है, लेकिन ये हम अभी RS आर्टिकल पे डालने भी वाले हैं इसकी कचौड़ी। अगर जिसको भी चाहिए तो अभी कमेंट्स पे करिए, जितने ज्यादा होंगे हम उतने ही ज्यादा जल्दी करेंगे, और अगर जितने कम वोट होंगे तो हम थोड़े दिन में बना के देंगे। लेकिन अगर आपको अभी चाहिए कचौड़ी की रेसिपी तो हम घर की कचौड़ी बनाएंगे, आपको बाहर से मंगाने की कोई जरूरत नहीं। अब ये मैंने यहाँ पे कचौड़ी की ड्रेसिंग कर दी है। थोड़ा सा क्या है, कचौड़ी को आप छोले के अंदर थोड़ा सा करिए, तो इसको मैं थोड़ा सा, अब मैं और थोड़े से इसमें छोले डालने वाला हूँ, ताकि क्या है, वो मजा नहीं आता है जब तक कचौड़ी डूबे ना उसमें। ये हो गया। अब मैंने हल्का सा मसाला डाल देना है, इस पे नींबू डाल देना है हल्का सा कचौड़ी के ऊपर, यहाँ से बस थोड़ा वो ड्रेसिंग के लिए, कोई जरूरत नहीं है, इसमें कोई मिर्च नहीं है, इसमें बिल्कुल भी मिर्च नहीं है। और मैंने हल्का सा नींबू डाल देना है। नींबू से क्या होता है कि जो आपकी मिर्च भी होती है वो चली जाती है। तो नींबू हमेशा चाट में सबसे बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है दिल्ली चिकन में, कि क्या है, वो अपने सारे मसाले छुपा देता है इंसान। जो भी चाट वाले भैया होंगे, जब आपको नींबू तेज लगने लगे तो समझ लेना उसने मसाला तेज डाला। अब ये बिल्कुल तैयार हो गया, अब मैं आपको इसको दिखाने वाला हूँ। उसके बाद मैं आपको दूसरा दिखाने वाला हूँ। कैसा है, मुंह में पानी आया? मेरे भी आ रहा है, अभी खाऊंगा मैं थोड़ी देर में सीखूं। सोच रहा हूँ एक बाइट खा ही लेता हूँ। एकदम बढ़िया। और भैया जो दिल्ली 6, वो जो 30,000 कोट के पीछे बैठते हैं वो वाले भैया, उनके एकदम छोले मैं कचौड़ी लग रहा है मस्त, एकदम बढ़िया। अब नेक्स्ट मैंने आपको जैसे प्रॉमिस करा था, मटर में 2 वैरायटी दिखाने वाला हूँ। तो अब ये है जो कॉमन फेवरेट है सबका, कचौड़ी बहुत ही कम लोग जानते हैं, लेकिन कचौड़ी जो दिल्ली 6 वाला है वो ना जाने मैं मान नहीं सकता। ये आ गया आपका कुलचा। सेम प्रिपरेशन रहेगी, ज्यादा कुछ डिफरेंट नहीं है। फिर से वही मैं मसाला, तो ये देख लीजिए, मैं आपको 2 बार दिखा रहा हूँ, ताकि ये एक्चुअली आपको ये याद भी रहेगा। और अगर आपको मसाला वैसे ही चाहिए अभी के लिए, तो आप बस कमेंट कर देना हमें, हमें सिर्फ एक भेजना, मैं आपका जुगाड़ करवा दूंगा, उसकी कोई टेंशन नहीं। अपन दिल्ली वाले हैं सारे, दिल्ली नहीं तो इंडिया तो है, तो इंडिया वालों को मैं ऐसे करा दूंगा जुगाड़, आप टेंशन मत लो। अब मैं डालने वाला हूँ छोले। ठीक है, इस बार मैं चटनी पहले डाल दूंगा। थोड़े से तो और लेंगे यार, ऐसे कम भैया बहुत कंजूसी करते हैं। हाँ, तो अब मैं डालने वाला हूँ इसमें ग्रीन चटनी। ग्रीन चटनी तो मतलब अपना इंडियन खाना, दिल्ली का खाना बिना ग्रीन चटनी के पूरा कभी हुआ नहीं है, हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब मैं वापस से वही डालने वाला हूँ, प्याज, टमाटर। अब प्याज टमाटर के ऊपर मैं मसाला इसलिए भी डाल रहा हूँ, आपको एक और चीज मैं सीक्रेट बताता हूँ। क्या होता है कि आप जब चाट वाले खाते हैं या किसी बड़े रेस्टोरेंट में खाते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, किसी बड़े रेस्टोरेंट में जब आप खाना खाते हैं, तो क्या होता है, वो टमाटर प्याज अलग से आता है। अरे यार, हम दिल्ली 6 वाले टमाटर में नींबू मसाला थोड़ा नमक तो डालो भैया, तो डालते ही नहीं है। तो इसीलिए मैं उसके ऊपर मसाला डाल रहा हूँ थोड़ा सा,
ताकि उसमें फ्लेवर रहेगा, आपको बिल्कुल कोरा नहीं लगेगा। थोड़ी सी हरी मिर्च डाल देता हूँ, अपन तो स्पाइसी खा लेंगे, लेकिन अगेन बच्चों के लिए बनाना है तो मसाला बिना यूज करे बनाना होगा आपको। घर में बनाइए, नमक नींबू का आराम से, कोई बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने ये अदरक डाली थी, अब मैं डाल रहा हूँ धनिया, और फिर ये तैयार। और आपके लिए मैंने अब 2 वैरायटी बना दी है, ये देखिए। देखिए आप कुछ खोले, कैसे लग रहे हैं? ये भी अच्छे लग रहे हैं ना? हाँ। अब कुलचे जो क्या है, कुलचे जो हैं वो दिल्ली में ही बढ़िया मिलते हैं, हमारे को थोड़े से मोटे मिलते हैं तो ऐसे है। लेकिन आपको अगेन बड़े रेस्टोरेंट में मजा नहीं आएगा, कुलचे वही होते हैं अपने बढ़िया पतले वाले। तो चलिए, अब मैं, मेरा छोले की वैरायटी पूरी हो गई है, नहीं हटा रहा हूँ, मैं आपको वापस से दोनों वैरायटी दिखाने वाला हूँ, और फिर हम आगे वाली वैरायटी पे बढ़िया बढ़ेंगे। उसके बाद कुल्ले बनाएंगे, थोड़ा जो वो पत्ते में आते हैं कुल्ले। तो ये देखिए, ये कचौड़िया, ये छोले कुलचे। आप किसी भी इंडिया के पार्ट से ज्वाइन कर रहे हैं तो अब आप घर पे बैठ के दिल्ली का खाना खाइए, कोई बिंदास, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मटरा भी इजीली अवेलेबल है अमेजोन पे, बस कर लीजिए। बस हमारा मसाला नहीं है, वो हम आपको भेजते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सो नाइजल, गुड टू गो फॉर द सेकंड डिश, और यू हैव एनी क्वेश्चंस? मेरे को लग रहा है नाइजल बनाने चला गया है। बहुत बढ़िया था आपका जो प्रेजेंटेशन था आकाश जी, बहुत बढ़िया था, मुझे बहुत बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा, बहुत ही स्वादिष्ट लगा। सो आई थिंक यू कैन गो अहेड विद व्हाटएवर यू हैव टू से, व्हाटएवर यू वांट टू कंटिन्यू। ओके, चलिए अब थोड़ी सी मीठी बातें करते हैं चांदनी चौक की। तो अब चांदनी चौक का जो हाल है, जो पहले होता था, बहुत ही गलियां हैं वहां पे नाइजल। इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट स्मॉल स्ट्रीट्स यू विल फाइंड एवर इन द वर्ल्ड। ओके। इतनी गलियां हैं वहां पे, इतनी गलियां हैं कि इंसान जो नया जाएगा, अगर वो एक गली में मैं उसको छोड़ के आ जाऊँ ना, वो बाहर निकलना उसका मुश्किल हो जाएगा। मैं ऐसी गली में छोड़ के आ सकता हूँ। तो वैसे है, लेकिन बढ़िया बात यह है, सारे ही लोग वहां पे मिलजुल के रहते हैं। हम लोग शुरू से, ऐसा कभी नहीं हुआ है कि हम लोग मिलजुल के ना रहे हो। बहुत ही बढ़िया, एकदम कल्चरल ओरिएंटेड, सारी फैमिलीज एक दूसरे के ऐसे बढ़िया सुख दुख में साथी। वो बेड़मी पूड़ी खा रहे हैं साथ में, ये खा रहे हैं, शाम को चाट खा रहे हैं, दिन में छोले कुलचे खा रहे हैं, और शाम को दाल नान भी मिलती है वहां पे बढ़िया ढाबे की, वो भी खा रहे हैं। तो हमारा तो बचपन नाइजल जी ऐसे ही गुजरा है, एकदम खाते पीते। वी आर प्रॉपर दिल्ली, एंड एक्चुअली दिल्ली को जो फूडी का टैग मिला है वो चांदनी चौक से मिला है। मैं आपको एक और सीक्रेट बता दूं, देयर इज नो अदर प्लेस इन दिल्ली कि आप दिल्ली में, आप चांदनी चौक में आप जाके इतना खा सकते हो कि आप एक्चुअली एक दिन में वो रिपीट भी नहीं कर पाओगे, सुबह से शाम आप खाते भी रहोगे दिल्ली 6 में आराम से। कोई कोई आपको वो नहीं है कि कोई दिक्कत हो। तो ऐसे है, पहले बहुत ही वहां पे रेसिडेंशियल था, अब थोड़ा कमर्शियल हो गया, बट अगेन इट्स वेरी सेफ टू गो। यू गो बाय चांदनी चौक मेट्रो एंड यू कैन गो देयर। बट वही है कि अभी मेरा यही मानना है कि घर पे रहे तो ज्यादा सेफ एंड सुरक्षित है। करेक्ट। अभी बाहर जाना सेफ नहीं है, सो स्टे देयर। बट अगेन व्हेन द थिंग्स होपफुली when pans out to be normal from our what we call as pandemic, तो जब चलेंगे अपन साथ में चलेंगे, बढ़िया से वहां पे भी खिला के आएंगे, और वहां के भैया को भी जिन्होंने ज्यादा मसाला डाला है उनको भी मैं सिखा के आऊंगा कि ढंग से बनाओगे। तो आप मेरे साथ चलना, मैं आपको सारी गलियां घुमाऊंगा, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, ठीक है? मैं आपको बाहर लेके आऊंगा साथ। ओके, सो बिल्कुल नाज़िल जी, if no questions, then I'm gonna go ahead to my second dish, which is a healthy dish also. ये भी हेल्दी है, छोले कुलचे में कोई वो नहीं है कि आपको वो है, घर में बन सकता है आराम से, बिल्कुल हेल्दी है। यस, थोड़ा स्पाइसी है, लेकिन थोड़ा स्पाइसी तो अपन खाते हैं। तो अब मैं शुरू करने जा रहा हूँ कुल्ले। इसका नाम होता है कुल्ले, इसमें ये सारी वैरायटी है। मैंने बहुत ही बढ़िया प्लेट सजा के रखी है आपके लिए पहले से ही, ताकि आपको थोड़ा सा मेरे को मेहनत ना करना पड़े। तो मैंने ये पूरा बढ़िया से सजा के रखी है। ये ऑरेंजेस के कुल्ले बनाएंगे अपन, ये बनाएंगे आलू के, केले के, और शकरकंदी, स्वीट पोटैटो, एंड अगेन ऑरेंजेस। तो ये पूरा प्लेट आज मैं खाने वाला हूँ, और आज ही खत्म कर दूंगा, मैं तो इतना खाने वाला हूँ। थोड़ी सी जगह बना लेते हैं। और तो अब इसमें बेस्ट पार्ट कुल्ले का ये है, हेल्दी है, और कुछ भी गैस पे प्रिपरेशन है, कोई गैस पे प्रिपरेशन नहीं है। इट्स वेरी हेल्दी, कि आप इसको गर्मी में खाओ, ठंड में खाओ, कभी भी खा सकते हो इसको, बिल्कुल कोई कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें थोड़े से इंग्रेडिएंट्स बहुत ही वो है, तो मैं अपने इंग्रेडिएंट्स सारे वापस से अपने सामने लाने वाला हूँ, यहाँ पे रखने वाला हूँ। सो नाउ आई एम गोना स्टार्ट।
सो बेसिकली अब मैं क्या करने वाला हूँ, मुझे एक यहाँ से मैं एक बोल उठाने वाला हूँ। और इसमें मैं मसाले बनाने वाला हूँ। इसको मेरे को एक बोल चाहिए था, मैं बोल को खाली करके मिक्स करके वो बना लेता हूँ। वही बात है ना, डांट नहीं पड़ी, बहुत दिन हो गए सही में। अब तो इंडिया जाने का मन कर रहा है। मैं इतना लंबा कभी इंडिया से नहीं दूर रहा हूँ कि ऑलमोस्ट मेरे को साल भर होने वाला है। फरवरी में गया था लास्ट। अब ये देखिए मैंने क्या लिया है, नमक। नॉर्मल नमक है, कुछ नहीं है। मैं आधे चम्मच डालने वाला हूँ, सिर्फ आपको दिखाया था बिकॉज अगेन वही वाली बात आ गई, काला नमक नहीं डालोगे तो फिर टेस्ट ही नहीं आएगा। तो ऑथेंटिक चीज है तो ऑथेंटिक चीज ही डालेंगे ना। टेबल सॉल्ट क्या, थोड़ा फिल्टर वगैरह हो जाता है उसमें, टेस्ट वो वाला बढ़िया वाला नहीं। ये पूरा आप एक चम्मच आराम से डालिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये मैं एक्चुअली क्या कर रहा हूँ, आप सोच रहे होंगे अभी मैं बनाने जा रहा हूँ कुल्ले का मसाला। इजी रहता है। क्या होता है, भैया तो क्या है, उनका तो हाथ चलता है रोज ऐसे 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 स्प्रिंकल करके फटाफट 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 बना के देता है। अब हमारा क्या, हमारे को नहीं होता है, पानी पी लेते हैं। क्योंकि मैं ही बोल रहा हूँ, आप तो बोल नहीं पा रहे हैं। आप लेकिन एक काम करिए, आप कमेंट्स में बोलते रहिए, नाइजल साहब मेरे को बताते रहेंगे कि क्या बोल रहे हो आप। ये मैंने अभी नमक डाला था, अब मैं डालने वाला हूं इसमें एक इंग्रेडिएंट विच इज पीला चाट का मसाला। पीला चाट का मसाला जो है आधा चम्मच ही डालने वाला हूँ। ये जो है अगेन दिल्ली 6 की स्पेशलिटी है। मेरे को तो अभी से स्पाइस में मजा आ रहा है। हाँ, नाक में क्या हर जगह जा रहा है, बढ़िया एकदम बढ़िया। एक चीज और बता दूं, मैं स्पाइसेस जो होते हैं वो आपका गला नाक सब खोल देते हैं। तो अगर कुछ हटकावा भी है तो सब बढ़िया एकदम हो जाएगा। अब ये मैंने डाला था पीला चाट का मसाला। ये मिलता है दिल्ली 6 में, केदारा का। बहुत दुकानों पे मिलता है दिल्ली 6 में, ग्रोसरी पे, या केदारा का आप शॉप सर्च करोगे तो वहीं दरीबे में है, किनारी बाजार में। वहां जाके आप पीला चाट का, लेकिन बहुत तीखा होता है नॉर्मल चाट के मसाले से, तो इसलिए बहुत ही कम डाला था मैंने, हाफ। लेकिन वो तीखापन हल्का जरूरी है। लाल मिर्च से बेटर था कि पीला चाट का मसाला डाल लो, क्योंकि उसमें हल्की सी मेरे ख्याल से पीली मिर्च भी होती है। अब ये नॉर्मल चाट का मसाला है, कोई भी आप चंकी चाट का मसाला ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। और इसको मैं डालने वाला हूँ पूरा बड़ा स्पून, इनफैक्ट 2 डालने वाला हूँ। ये 2 पूरे हो गए। अब जो है चीज मेरे पास, वो आपके पास नहीं है, बताइए क्या। वो है फिर से मेरे पास 80 साल का खजाना। वो है आर एस मैजिकल का चाट मसाला। बिल्कुल प्योर ऑर्गेनिक, घर में बना हुआ, साबुत मसालों से बढ़िया पिसा हुआ है, इमाम दस्ते से। तो ये मसाले होते हैं बहुत ही बढ़िया। लेकिन चिंता मत करिए, हम फिर से ये लॉन्च कर रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। अब तब तक आप अपने दूसरे बाजार के मसालों से काम चलाइए, उसके बाद हम आपको प्योर ऑर्गेनिक चाट के मसाले भेजेंगे। बिल्कुल, हम उसको अमेजोन पे भी क्या, सब जगह अवेलेबल करवाएंगे। ये मैंने थोड़ा सा अराउंड 1 स्पून डाल दिया। अब मैं इसको मिक्स करने जा रहा हूँ। जो गुठलियां है मसाले की वो मैं तोड़ रहा हूँ। मैंने जैसे कहा था कि ये प्योर है, तो गुठलियां तो प्योर वाले मामले में होगी ना। जब भी इतना ज्यादा फाइन मिले तो फिर उसमें टेस्ट ही कहाँ बचेगा। ये देखिए, ये मैंने थोड़ा सा मसाला ये बना लिया। अब इस मसाले से क्या करना है, नहीं देखते हैं। अब ये मसाला मैंने हाथ में लिया, चम्मच से मजा नहीं आएगा, चम्मच से ज्यादा स्प्रिंकल का मजा नहीं आता है। तो ये मैंने डाल दिया है आपको सब जगह। ये मैंने पहले आलू में डाला। अभी मैं आपको एक और सीक्रेट बताने वाला हूँ कि कुल्ले वाले भैया के जो फ्रूट्स के कुल्ले होते हैं और वेजिटेबल के कुल्ले होते हैं वो अलग क्यों होते हैं, मैं अभी अब आपको 2 मिनट में बताने वाला हूँ। देखो, ये मैंने ऐसे जो शेप था, मैंने आपने देखा था फ्रूट्स की शेप, एक पॉकेट सी मैंने खोल के रखी हुई थी। पॉकेट बहुत ही आसान है खोलने से, आप छुरी से आराम से उसमें एक होल कर लीजिए और बना लीजिए। मैं आपको क्लोजली दिखा देता हूँ बिफोर पुटिंग एनी मसाला। तो ये मेरा आलू है, ये देख रहे हैं आप, ये आलू आधा ऐसा दिखता है। अब ये मैंने इसमें स्पेस बना दिया, लेकिन नीचे इसका पूरा नहीं होल खोला है, तो मेरा मसाला भी उसमें कंटेन हो गया। दिख रहा है आपको, बिल्कुल दिख रहा होगा, कैसे नहीं दिखेगा। तो ये मैंने मसाले डालने शुरू कर दिए हैं। संतरा, विटामिन सी,
शकरकंदी, ये तो हमारे अभी तो ठंड में शकरकंदी बहुत ही बढ़िया आ रही होगी, तो अब तो आपको बहुत ही इजीली मिल जाएगी। इंडिया की शकरकंदी की बात ही अलग है। ये मैंने सब जगह मसाले भर दिए। अब थोड़ा सा मैं मसाला छोड़ने वाला हूँ, उसकी जरूरत होगी मेरे को बाद में, मैं बताऊंगा आपको क्यों नहीं। अब इसमें मैं डालने वाला हूँ नींबू। यस, नींबू। नींबू तो भाई बिना हम नींबू के तो कुछ नहीं खा सकते। संतरे में कम नींबू डालिएगा, बिकॉज उसमें वैसे ही पहले से ही थोड़ा सा खटास होता है, लेकिन फिर भी एक दो बूंद जरूरी है, ताकि आपके वो मसाले को जो है वो दबा दे। आपको मसाला फिर कभी भी आपको पेट खराब करेगा ही नहीं अगर नींबू डला हुआ है अच्छे से। बहुत जरूरी है। नींबू प्लीज पहले से ही मंगा के रखिएगा, सर्दी है, बढ़िया नींबू आ रहे हैं, जैसे मैं बोल रहा था। मैंने बहुत सारे नींबू काट के रखे हुए हैं, बिकॉज बिना नींबू डाले तो हमारा कुछ बनता ही नहीं। चाहे वो पाव भाजी हो, चाहे वो भेल पूड़ी हो, हम तो भाई नींबू डालेंगे और अच्छे से डालेंगे। हम नहीं खा सकते ऐसे बिना नींबू के खाना। ये पूरे इंडिया में ही ऐसा है, बट स्पेशली दिल्ली 6 में तो कुछ ज्यादा ही है। अब इसको नींबू को जो है सिर्फ ऐसे ही नहीं छोड़ना, थोड़ा सा इसको मिक्स कर दीजिए मसाले को, ऐसे ये ऐसे, ये ऐसे, ऐसे शकरकंदी का भी थोड़ा सा नींबू कम है शकरकंदी में। ये मैंने डाल दिया मसाला, अब इतना रेडी हो गया। अब मैं आपको एक एलिमेंट दिखाने वाला हूँ, बहुत ही ट्रिकी एलिमेंट है। इसे कहते हैं बेबी चिकपीस। अगेन ये दिल्ली में ही अवेलेबल होता है, बहुत ही छोटा चना है, ये काबुली चना नहीं है, ना ही मटर है। देखिए कितना सा है, छोटा सा, बट बहुत ही अच्छा होता है। हेल्थ के लिए भी इसे स्प्राउट भी करके खा सकते हैं। और ये इसमें जाएगा, तो इसीलिए मैं कह रहा था कुल्ले जो है बहुत ही हेल्दी बनाने वाला हूँ मैं, ताकि आपको कोई टेंशन नहीं रहे। मेरे को इतनी कैलोरीज बता दी, मेरे को ये फिर से बता दिया, सिर्फ उसने रेसिपी बता दी, और हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इतना हैवी कैसे खाएंगे, तो हम घर का ही खाएंगे। नहीं, ये भी बहुत लाइट है। आप अपना वो नॉर्मल दाल चावल छोड़ के ये खाइए, इसमें फाइबर्स हैं, इसमें वेजिटेबल्स हैं, बहुत जरूरी है ये भी हेल्थ के लिए। तो अब क्या करने वाला हूँ मैं, अब मैं आपको ये डालने वाला हूँ। अगेन ओके, एक और चीज बताना भूल गया, फिर से देखो। ये है बेबी चिक पीस। इसमें मैंने क्या करा है, पानी में उबाल के रखा हुआ था मैंने इसको। ठीक है, उबाल के उसके बाद पानी निकाल के मैंने इसको एकदम बढ़िया से बना के रखा है। ये अब ऐसे पिचक जाएगा, लेकिन एकदम पिचका हुआ नहीं है। ये देखिए आप फिर से, बिल्कुल बढ़िया लग रहा है, ना ही कच्चा है ना ही पक्का हो रहा है। अब ये मैंने डाल दिए, तो जो वो पॉकेट्स थी ना उसमें ये जाता है। ठीक है, अभी एक और एलिमेंट जाएगा, रुको अभी आप वहीं पे रुके रहिए। और मुझे लग रहा है मुझे मसाला और बनाना पड़ेगा, कम रह गया। क्या है कि मसाले के बिना तो वो ही नहीं होगा अपना। ये मैंने पूरे जगह छोले भर दिए हैं केले में। ओहो, केले के कुल्ले वो बाड़े के टाइम पे, रामलीला के टाइम पे भैया बना के लाए, इतना बढ़िया वो मिलता है। ओहो हो, बहुत ही मजेदार होते हैं कुल्ले तो। ओहो, चटपटे फ्रूट्स। ओहो, बट ये क्या है, ये फ्रूट चाट नहीं है, ये अलग चीज है। मैं सही बता रहा हूँ, आप एक बार ट्राई करना। अगर आपने कुल्ले ट्राई नहीं करे, आपको लग रहा है कि फ्रूट चाट है, ये नहीं है। ये बहुत ही डिफरेंट है, उसका आपको खाने में मजा है। लेकिन चने थोड़े से अच्छे से भरिएगा, ना बिना चने के ये डिश पूरी नहीं है। अभी मैंने इतने चने पूरे अच्छे से भर दिए अपने फ्रूट्स में। अब इसको थोड़ा सा और इनरिच करने के लिए, अगेन हेल्दी चीज, मैं अनार लेके आया हूँ, थोड़ा खून बनाई है, ठंड का टाइम है। तो अब मैं अनार स्प्रिंकल करने वाला हूँ। पहले संतरे पे करेंगे, थोड़ा सा मैंने आलू पे डाला है, आलू पे, और ये मैंने डाला है वापस आलू पे, और अब मैं डालने वाला हूँ इनको वापस से संतरे इधर मेरी प्लेट में। ओहो हो, ऐसा मन कर रहा है कि फटाफट बना के यही खा जाऊं। आज मैंने डिनर नहीं करा हुआ है, तो बस यही खाने वाला हूँ इसके बाद। तो अब एक और, चलो एक और बात बताता हूँ बिफोर पुटिंग अनार। अब हम रहते थे चांदनी चौक में, नई सड़क में। नई सड़क में हमारे घर के नीचे वाले भैया होते थे चाट वाले। एकदम नुक्कड़ पे बैठते थे, बढ़िया सी टिक्की सेकते थे, आलू की चाट, उनके पास मटर नहीं, लेकिन उनके कुल्ले, ओहो, ऐसे प्लेट में बना के लेके आते थे ऐसे। तो पहले जो गेस्ट आते थे चांदनी चौक 6 में, आज के टाइम पे नाश्ता चेंज हो गया है। वी प्रिपेयर डिफरेंट, वी प्रिपेयर मोर वेराइटी।
बट ये ऑथेंटिक है। ये वेराइटी आजकल कोई प्रिपेयर नहीं करता था, आप प्रिपेयर करोगे आप सबसे नंबर 1 पे रहोगे। लेकिन उस टाइम पे मेहमान आते थे, हमारे सबसे पहले ये होता था, जा नीचे से जाके कुल्ले की पत्ता बनवा के ले आ। अच्छा कौन सा? सारे बनवा के ले आ। इसमें खीरा भी डाल सकते हो, टमाटर का भी डाल सकते हो, कुछ भी बना सकते हो। एक्चुअली दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ इट कि आप इसमें बहुत सारी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की वैरायटी बहुत अच्छे से बना सकते हो। और फिर वो ऐसे बना के लाते थे भैया, और गुल खत्म 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 और बना के लाओ। तो अब क्या था, एक अच्छी बात चांदनी चौक रहने में, मैं अनार डालते जा रहा हूँ बातें करते रहते हुए, कि नीचे ही सामान मिलता था तो बढ़िया से होता था। अब हम थोड़ा सा दूर रहते हैं लेकिन दिल्ली में ही रहते हैं, बिल्कुल दिल्ली वाले हैं। मैं कभी भी इंडिया जाता हूँ तो दिल्ली के बिना तो, छह के बिना जाए बिना, चांदनी चौक में छोले कुलचे, कुल्ले, बेड़मी, ये सब खाए बिना तो ट्रिप पूरा ही नहीं हो सकता है। ऐसा लगता है कि सादेपन में ही वापस आ गए हैं। ठीक है, भीड़ बहुत है, कुछ नहीं होता, भीड़ की आदत है, हमें शुरू से चांदनी चौक में रहने वाले हैं। यही हमें फ्लेक्सिबिलिटी सिखाई गई है कि आराम से रहो, चाहे भीड़ हो चाहे शांति हो, आराम से रहो। फिर रात को वहां सन्नाटा हो जाता है, सारी दुकानें बंद हो जाती हैं। तो अब मैं ये वापस से मसाला डालने वाला हूँ सब चीजों के ऊपर, ताकि जो है आपके जो है चने, वो आपको सादे नहीं लगेंगे। तो अब मैं आपको रिपीट करने जा रहा हूँ मसाला शुरू में जो मैंने आपको दिखाया था, ताकि आप भी याद रखो और मेरा कम भी पड़ गया तो मैं बनाता हूँ। थोड़ा सा नमक, बहुत ही कम, बट काला नमक ज्यादा, ऑलमोस्ट दोनों मिला के 1 चम्मच डाल रहा हूँ मैं। अब डाल रहा हूँ मैं नॉर्मल चाट का मसाला, चंकी चाट का मसाला सबके घर में रखा हुआ होता है, वो ही डाल लीजिएगा, 1 चम्मच वो डालने जा रहा हूँ। अब पीला चाट का मसाला, हाफ से कम, बिकॉज मैं कम मसाला प्रिपेयर कर रहा हूँ, इससे ज्यादा तो मैं खा नहीं पाऊंगा। और थोड़ा सा RS मैजिकल चाट मसाला, ये डाल दिया। अब मैंने इसको मिला दिया है और अब मैं डालने वाला हूँ वापस से इसके ऊपर ये। अब लग रहा है कुछ, पहले तो हाई नहीं रहता, ऐसा लग रहा था फ्रूट्स खाने सारे। तब थोड़ा मसाले वसाले जाएंगे हमारे पेट में तो थोड़ा लगेगा चटपटा। और इसको ऐसे स्प्रिंकल करेंगे ना तो प्लेट पे, ऐसा नहीं कि आपको पॉश दिखाना है, साफ दिखाना है, हमें नहीं दिखाना साफ, हम दिल्ली 6 वाले हैं तो ऐसा दिखता है। अभी रुकिए, बना नहीं है, अभी खा मत जाना। हाँ, तो अब इसमें वापस से एक और एलिमेंट डालना बहुत जरूरी है। वो था आपका, जो मैंने क्या बताया था, याद है आपको? नींबू। नींबू देखिएगा, मैं सिर्फ आलू में डाल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे को एक चीज आपको बहुत ही डिफरेंट बतानी है, वो है बूरा। बूरा इज मोर, ये थोड़ा सा बूरा आगे इंडिया में बहुत ही आराम से मिलता है। थोड़ा सा ग्राइंडेड शुगर होती है, बट इसका टेस्ट अलग होता है, शुगर से आपको मजा नहीं आएगा। ये थोड़ा सा रिफाइंड है। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो रिफाइंड शुगर ले लीजिए, बट आप इंडिया में रह रहे हो, आपको तो मिलेगा जब मेरे को यहाँ मिल रहा है। तो ये मैं बूरा जो है सिर्फ फ्रूट्स पे डालूंगा। ठीक है, वो हो गया आपका संतरा, थोड़ा सा ऑरेंज, विटामिन सी, केला, बनाना, वापस से ये संतरे में। मैं आज भी बेट कर सकता हूँ आपको, इंडिया में दूर दूर से जो भी दिल्ली 6 का पहले ही खाया हुआ है, वो अगर दिल्ली आया और ये ना वापस खा के जाए ना, वो जा ही नहीं सकता दिल्ली से वापस। शक्करकंदी में आप डाल सकते हैं, अगेन बच्चे खा रहे हैं थोड़ा सा तो आप डाल सकते हैं। चटपटा चाहिए तो मत डालिए, लेकिन मैं डाल रहा हूँ बिकॉज शकरकंदी में थोड़ा सा चल जाता है, हल्का ही डाला है, शकरकंदी मैंने कम डाला है। फ्रूट्स में आप अच्छे से डालिए पूरा, तो आपका क्या है, मसाला कंट्रोल हो जाएगा। मैं थोड़ा सा मसाला लास्ट के लिए डाल देता हूँ। अब नींबू क्या है, मैंने किस में डाला था पहले, याद है आपको? सिर्फ आलू में। अब मैं बाकी सब चीजों में डालने वाला हूँ, वो है केले। एक और दिल्ली वालों की बातें बताता हूँ मैं आपको। क्या होता है कि शादी में जाते हैं हम, वो भैया कभी बना नहीं पाते हैं, तो जो दिल्ली 6 वाले होते हैं उनको हमेशा नखरीला कहा जाता है। तुम लोग की तो बड़ी खाने की बुरी आदत है, बड़े नखरे तुम्हारे। अरे नखरे नहीं जनाब, हम तो ऐसे ही हुए हैं, हमारे को तो पूरा ही टेस्ट में नहीं चाहिए, वरना तो हम तो करें ही ना। तो इसीलिए पूरा अच्छे से हम तो कहते हैं उसको, भैया मसाला नहीं डाला, नींबू कम है, और हम बता भी सकते हैं क्या कमी है। अगर जो दिल्ली 6 वाला है, अगर उसको खाने का शौक तो है ही, तो वो तो बता सकता है क्या कमी है। मैं नींबू थोड़ा सा पूरा हर जगह डाल रहा हूँ, बातों में बहुत ही टाइम निकाल रहा हूँ, लेकिन ठीक है, थोड़ा सा आपका एंटरटेनमेंट भी करते रहूंगा तो वरना मजा कहाँ है। अब एक और एलिमेंट है इसको गार्निशिंग करने के लिए,
वो है आपका जिंजर। जिंजर, हाँ। अब आप देखना कभी चाट वाला हल्का सा आपको एकदम से लास्ट में कुछ करके देता है, वो यही है, वो जिंजर है। थोड़ा सा ये डाल दिया मैंने, आलू पे डाला है। मेनली मैं वेजिटेबल्स पे ही डाल रहा हूँ, फ्रूट्स पे जिंजर ज्यादा अच्छा नहीं लगता, लेकिन कई लोगों को जिंजर पसंद है। एंड जिंजर इज वेरी गुड फॉर हेल्थ ऑल्सो, सो मैं डालने वाला हूँ, जिंजर इज वेरी गुड फॉर हेल्थ। जिंजर से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। ये आपके बहुत ही चीजें जो ठंड को भी, ठंड में बहुत ही अच्छी जिंजर भी आती है, तो आप आराम से इसको जिंजर खाइए, अदरक वाली चाय पीजिए इसके साथ। अब ये आपका पूरा प्लेटर तैयार है। अब आप चाहें तो इसको थोड़ा सा गार्निश करना है तो आप हल्का सा हरा धनिया डाल दीजिए, बट जरूरत नहीं है। ये ऐसे ही ऐसा लग रहा है कि मैं अभी खा जाऊंगा, मैंने खाना खाया नहीं है जैसे मैंने आपको बताया था। ये देखिए कैसा लग रहा है, बढ़िया है। हाँ, बस यही है कि मैंने इसमें बनाया हो, भैया दोनों में बना के देते, इसलिए आपको फेसबुक पे मिल रहा है, उनका वहां पे स्ट्रीट पे जाके मिलेगा। लेकिन अभी स्ट्रीट पे मत जाना, अभी घर पे खाओ, ठीक है, बाहर मत जाना, वरना सब कहेंगे कि भैया इसने चांदनी चौक को तो पूरी मार्केटिंग कर दी। अभी आ जाएंगे मोदी साहब मेरे घर पे और बोलेंगे कि ये तो चांदनी चौक की मार्केटिंग करे जा रहे, कह रहे जाओ जाओ जाओ। मैं नहीं कह रहा जाओ, घर पे बैठो, ये देख, ये रहा पूरा, ये वीडियो अपलोड कर देंगे हम, आप आराम से देखिएगा, बनाइएगा, उसको खाइएगा। और नहीं भी आपको समझ में आए तो हमें कमेंट करिए, हमें ईमेल करिए, हमें फोन भी पे, व्हाट्सएप पे भी हम अवेलेबल है, तो आप आराम से हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो अब ये मेरी तीनों डिशेज रेडी हैं। अब इसको आप आराम से शिकंजी के साथ, चाय के साथ सर्व करिए, एंजॉय करिए, ज्यादा बाहर की कोल्ड ड्रिंक मत पीजिए। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। नाइजल, ओवर टू यू। What an amazing presentation, Akash. I have no, I really have no words, and I don't have any questions. And I don't, I don't think that even the viewers, they're all surprised, and they're all hungry. Trust me, this is all that we were going through in the back end. We were all तो मैं just आपको वापस hungry. से हंगरी बनाता हूँ, ये देखो। Going, Nigel, please come to Delhi. I'll definitely, take you around. And मैं Sure आपको thing, बेसिकली वो sure जो thing. नेक्स्ट वाला होता है वो आपको दिखाऊंगा, मैं ऐसे वैसे नहीं दिखाऊंगा। Sure thing, sure thing. Now I'm at least relieved that at least I know someone in Delhi. Like this is the best. Like so many things on your table, beautiful, entertaining. I have no words, Akash. And viewers, now is the time that you can ask Akash your questions. I know that you may not have, but still, if you are hesitant to ask, please ask the questions. Okay, so there comes a question on screen by Rupa Thakur. Amongst all the three, which one is your favorite? कुल्ले, क्योंकि ये Kulle. मिलते नहीं है रेस्टोरेंट में, तो ये घर पे ही बनते हैं। यहाँ दुबई में नहीं मिलते, ना ही इंडिया में कहीं नॉर्मल रेस्टोरेंट में बनते हैं। So kulle is the favorite one because it's a unique one, and even everybody loves it from my hand also. So kulle मेरे भी favorite है, बहुत ही मजा आता है इनको खाने के बाद, और बढ़िया से शिकंजी बनाता हूँ मैं इनके साथ, और बहुत ही मजा आता है। अब इसमें क्या है कि जस्ट वन मोर थिंग, सिंस यू आस्क्ड कि मेरा फेवरेट कौन है और ये क्यों है। इसमें जो स्पाइसेस का जो मिक्स गया है, नाइजल एंड आई थिंक रूपा आस्क्ड इट, सो इट्स अ वेरी वेरी mixed blend of spices, it's variety of spices। तो इसीलिए जो आपके जो स्पाइसेस हैं, हम चांदनी चौक वालों को, हम जाते हैं खाड़ी बावड़ी, कच्चे मसाले लेके आते हैं और बनाते हैं घर में, तो हमें तो वही आदत है। इसीलिए आपको देखा होगा मेरी टेबल पे पूरे मसाले मसाले भरे हैं। हम मसाले का खाना ही खाते, दैट इज प्रैक्टिकल। तो आपका वीकेंड सिर्फ चाट में ही जाता है कि आप असल में कुछ खाना भी खाते हो मेन कोर्स में? चाट के बिना नहीं जाता, ये तो पक्की बात है। जब तक एक बार वो पानी पूरी या ये या वो ना जाए, अरे तो होता ही नहीं है। आलू की चाट एक आइटम तो पक्का है ही पूरे वीकेंड पे, नाइजल, दैट डेफिनेटली वेदर वी गो आउट और डू एट होम, we'll do something, we'll make आलू का झोल और कचौड़ी और समथिंग। आई एम अ फूडी, प्योर चांदनी चौक का बंदा, एकदम अपना मस्त, अपने को तो खाना चाहिए। बिना चाट अगर हफ्ता निकल गया तो भैया ऐसा लगता है कि बीमार पड़े हैं या सादा खाना खा रहे हैं, तो वो थोड़ी ना यार, अपन तो अपना हेल्दी, इससे एक्चुअली मेरे को लगता है कि एनर्जी आ गई है। सो दैट्स द थिंग, चाट के बिना तो That नहीं is चलता है। amazing, amazing. Another question, Akash, for you. Like Abhilash Nair has really appreciated your presentation and confidence, and he has a question. Who is your inspiration in cooking? Okay, so my cooking inspiration is my mom, and my taste buds come from my dad.
मॉम को बनाना पसंद है और डैड को खाना पसंद था, तो हम तो वही वही होता था। और पापा भी हमारे पूरे चाट वाले खाते थे मजे से, तो हमें तो हमारी मॉम इंस्पिरेशन है फॉर कुकिंग। अब मैंने बहुत सारी और भी रेसिपीज बनाई, इट्स नॉट दैट आई ओनली डू चाट, आई आल्सो डू अदर रेसिपीज आल्सो। सो अभिलाष, प्लीज ट्यून इन टू आरएस मैजिकल यूट्यूब, वी कीप ऑन अपलोडिंग। मैंने ऑलरेडी एक दो वहां पे डाली हुई है अपनी सीक्रेट पास्ता की रेसिपी एंड ऑल दैट, विद सम स्पाइसी फ्लेवर, सो प्लीज डू ट्यून इन देयर। बट yes, my inspiration is my parents and obviously my mom. मैं अब आपको एक बात बताता हूँ, मैं घर से निकल रहा था अराउंड 12 साल पहले की बात है, बाहर 14 साल। So I was going to France. Now France is a very dry place to eat. It's a beautiful country and all. मैंने एक महीना अपनी मम्मी के नीचे डांट सुनते हुए पूरा खाना बनाना सीखा है. That is my inspiration. So that is where I started there and I never stopped. And I actually went there. France में जाके 2-3 लोग होते थे, उनके साथ दोस्तों के साथ बना के खाते थे, और उसके बाद से मैं पूरा बनाता था बिंदास. अपने नए नए एक्सपेरिमेंट करते थे हम, थोड़ा सा हम टैंगी फ्लेवर डालते थे, और हम थोड़ा पास्ता में बना लेते थे. So I have combined lot of variety of cuisines also in entire of my last 12-14 years where I have been cooking, and cooking is actually my passion, has become my passion slowly and slowly. Singing and cooking, these two things, and obviously badminton, but that's sport, so that's not really passion, but that's really more a hobby. But passion अगर आप मेरे को बोलोगे तो cooking में है और singing में है. Sing करने में मेरे को थोड़ी सी आती है, but cooking करने में मेरे को कोई शर्म नहीं है. Cooking करने में बिल्कुल बिंदास तैयार हूँ. So Abhilash, please, if any questions, please do let us know. Amazing. There is a question coming from Siddharth Jain. Is it better to eat chole kachori in evening dinner or in lunch? ओके, वेरी ट्रिकी क्वेश्चन. एक्चुअली मेरे हिसाब से तो दिन में खाने चाहिए, ठीक है, रात को छोले नहीं खाने चाहिए. दैट इज माय ओपिनियन. बट आजकल लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, रात को हम लेट सोते हैं, तो अगर आप 7-8 बजे खाना खा रहे हो तो बिंदास खाओ होके, कोई टेंशन नहीं है. छोले कुलचे या छोले कचौड़ी रात को भी खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. बट प्लीज पानी अच्छे से पी लेना और एक मिंट की अच्छे से शिकंजी बना लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी. नींबू अच्छे से आप डालोगे तो आपके सारे मसाले जो है वो दब जाएंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है. बट यस, छोले इज एसिडिक, सो यस, माय प्रेफर इन डे टाइम, बट नो प्रॉब्लम्स टू ईट इन इवनिंग आल्सो. Just let me check if any more questions. We have another question coming from Ankit Mishra. Hey Akash, looking forward to Kachori Secrets, especially the onion one. Okay, now what is this one? Is there some secret? Okay. Yes, so Nigel, जो ये कचौड़ी हमने डाली थी, ये खस्ता कचौड़ी है. ये बेसिकली दाल के मसाले की बनाई जाती है. Okay. Now there is कचौड़ी में भी क्या है, अब यही नॉर्थ वाले जानते हैं, आई एम श्योर अंकित इज फ्रॉम नॉर्थ, कि जो है एक प्याज की कचौड़ी आती है. जो प्याज की कचौड़ी आती है नाइजल, दैट इज बिट डिफरेंट देन दिस, एंड या इट्स बिट बिगर. उसमें थोड़ा सा आलू और थोड़ा सा प्याज का कॉम्बिनेशन, उसका मसाला बनता है, दाल का नहीं बनता है उसमें. तो आप उसको पूरा अच्छे से भूनते हो, मैश करते हो, दैट इज योर अनियन कचौड़ी. And that also you can eat with chole, but it goes more with the meaty chutney and green chutney. But yes, Ankit, for sure, definitely, since you have put the request, we will definitely put something up for you on RS Magical. Amazing. Wow. Another question. Are you going to open a restaurant in Dubai for people? डेफिनेटली. अभी थोड़ी सी कैपिटल में है, अभी थोड़ा सा कोरोना का चल रहा है, मैं खुद बोल रहा हूँ लोगों को घर पे बैठो, तो अभी नहीं करेंगे वो भी, लेकिन अभी थोड़ा टाइम है उसके लिए. डेफिनेटली इट्स गोना हिट दुबई स्ट्रीट्स आल्सो. दिल्ली 6 की सारी गलियों को मैं यहीं लेके आऊंगा, आप देख लेना. सही है. आई थिंक ये आपका जो पैशन देख के ही ना लोगों का जो क्वेश्चंस है वो आ रहा है, एंड इट्स वेरी एंटरटेनिंग. इट्स वेरी देयर इज अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस बिहाइंड the dishes that you present and the way you talk about Delhi 6. It's amazing. You just make someone go. You really make someone go there. So we have can we oh my goodness, this is Ankit Mishra. Can we have some singing now? अरे क्यों अंकित भाई, सबको भगा दो, बंद कर देंगे, खाना खाने दो यार. मेरे भूखे पेट से आवाज अच्छी नहीं आएगी. सब आज ही हो जाए. सब आज ही हो जाएगा, थोड़ा नेक्स्ट टाइम के लिए भी रखो. Me and Nigel will be back very soon. Maybe the next time we'll do some singing also, Nigel. Yes, sure thing. So just let me check, Akash, if there are any more questions. I'm going to check the comment section. If I've missed out
any questions, I'll add it to the screen. बिल्कुल आप चेक करो जब तक मैं गस्सा और खा रहा हूँ. अरे इधर किसी Okay. के क्वेश्चन पूछ लिया. ओके फाइन. Yes, food looks really yummy. Other than that, I would love to know for where you got your outer. This is coming from Deepak Kumar. Outer means what? Is it? You mean this dress? Is it what he mean? The outfit? Deepak, we would really want you to emphasize on that. What do you mean by outer? Uh, I think we can just go to the next question when Deepak, is ready with his अगर explanation. आउटफिट की बात है तो मैं दीपक का आंसर कर देता हूँ नाइजल. आउटफिट की अगर Okay. बात है तो बिकॉज ये भी इंटरेस्टिंग होने वाला है. ये आउटफिट भी चांदनी चौक से खरीदी गई है. ओके. मोती बाजार के बाहर एक कुर्ते पजामा वाला है. मैं वहीं से अपने कुर्ते पजामे खरीदता हूँ. वो लखनऊ से, पठानी, ऐसे पूरे इंडिया से कलेक्ट करके लाता है. चांदनी चौक में यही स्पेशल बात है. आपको सारी मार्केट्स मिलती है वहां, कपड़ों की हो चाहे कुछ भी हो. सो यू गेट लोड्स ऑफ थिंग्स. सो इसीलिए वहां से लाया हूं मैं. अगर लेकिन दीपक कुछ और पूछना चाह रहे हो आप प्लीज कमेंट. यस नाइजल. Okay, just let me check. Any more questions? Everyone, they really loved your your presentation. All kudos to your preps. Your mom, RS Magical, every hand and effort that went there. Amazing. So we've just asked them to shoot more questions, ओके. and we'll see if there is anything that's interesting. चलिए जब Uh, तक मैं आपसे एक और स्टोरी शेयर करता हूँ नाइजल, टिल द okay, टाइम एनी okay. क्वेश्चन कम्स. सो बेसिकली एज आई सेड, बोर्न एंड ब्रॉट अप इन चांदनी चौक. स्कूल जाते थे तो क्या होता था कि हमारे स्कूल जो है वो था लोधी रोड पे. सो इट वाज एन एयरफोर्स स्कूल, वेरी डिसिप्लिन्ड एंड ऑल दैट. अब चांदनी चौक से बिना किसी का जूते पे जूते पड़े हुए निकलना, इट इज सो डिफिकल्ट. तो मैं क्या होता था, अगर मैं निकल भी जाऊं स्कूल के लिए तो वो जूते गंदे हो जाते थे. अब मैं हर बार असेंबली में बाहर खड़ा होता था साफ करके भी. तो ये चीज आती थी. और अब एक और मैं चार्ट का सीक्रेट बता दूं. स्कूल से वापस आते थे तो अब हम जो गलियों के रास्ते से घर पहुंचते थे, उस टाइम पे हमारा क्या होता था, थोड़ी सी पॉकेट मनी मिलती थी, उसी से कुछ ना कुछ रास्ते में खाते पीते आना ही है, आना है. घर पे डांट पड़नी ही पड़नी है, लेकिन चाट खानी ही खानी है. हमें तो कुछ अच्छा भैया ये बना दो, या फिर ये हो गया कि जाएंगे. तो ये ऐसे हमारा स्कूल की स्टोरीज ऐसी चलती. डेली डेली का यही रूटीन था. और लेट हो जाते थे और वहीं पे खाते पीते मस्ती से आते. लेकिन इट्स द थिंग इज, इट्स द humanity, it's the togetherness of Chandni Correct. Chowk, which brought all of us together, and we enjoyed our childhood so much that wherever I have traveled so far, that I cannot forget ever and ever. And I think nobody can Wow. ever if they have been born and brought up in Chandni Chowk. That's amazing. Akash, thank you so much for an insight into Delhi 6. As they say, the word Delhi has a word heart, and I think you've just touched it right there. And no more questions. All their questions are answered. Superb, superb. Really loved this evening. And you've just like kept us entertained. Like RS Magical is superb. All the best to you, to the entire team, whatever you guys have in mind. All the preps, all the best. You have a very bright future. All this is what I can tell you. RS Magical has a bright, bright future. Looking at this, so I really want you all viewers, for tuning in, Akash's families, friends, my family, to please follow RS Magical on Instagram, on Facebook. Okay, and they also have, their And videos. YouTube also. YouTube Yes, so videos are usually on YouTube. So yes, YouTube also, please. yes, the videos, yeah, that's what I was just going to say. The videos are also on YouTube. So you need to just follow this page, and you never know what would be the next surprise coming, your way. So follow Tariq pe Tariq, and looking forward to have RS Magical, one of the other team members, or Akash, back again on the show. But thank you so much, Akash. Any thing that you would like to tell our viewers, apart from your stories, your interesting stories? Is there something that you still want to add?
Sure. Thank you so much to appreciate and listening to me. Sometimes when it comes to Chandni Chowk, I can talk for not only hours but for days. Yeah, somebody can come to holidays also with me, and I will still talk about Chandni Chowk. That's how close it is, Delhi and Chandni Chowk to me, and it will Wow. always be. So again, thanks for tuning in. Again, as Nigel, thanks to have me and RS Magical. Thanks to collaborate with us, Tariq pe Tariq, and with RS Magical. And thanks RS Magical to get me the boost and the confidence, to come up online. And obviously, again, surprises will be keep on coming. We will be continuously collaborating. Please follow us. Please do like us and. Come and watch us anytime. Send your questions, no problems with that. And our brand is anyway is planned to be launched next year, so you will have a lot Wow. of things which will come up your way. Hopefully, by the grace of God. I really, I'm a Jain by heart, by the way. A lot of people from Chani Chowk are Jain. We had a good strong Jain community there. So Okay. बस Wow. यही बोलते हुए कि बस अगर भगवान ने चाहा, भगवान महावीर ने और दादा गुरुदेव ने, so we will come with our brand to you very very soon. So again, thank you, Nigel, really, and thank you everybody to join me. And that's it. That's all I can say. And I will say good night. Enjoy. Tomorrow is day off. Tomorrow is day off for everybody. Plus, tomorrow is a very big religious festival. Stay at home. Correct. भगवान सबके दिल में है, भगवान घर पे भी है. So please stay at home and enjoy your holiday tomorrow. Thank you. Yes, and you too as well, Akash, and also RS Magical. Thank you so much once again, and stay home, stay safe. We'll stay connected and see you all viewers. Thank you so much. It was an absolute pleasure on behalf of RS Magical and Tariq pe Tariq to have you all stay tuned and put till this very moment. Okay, it shows how much you love food. So see you on the next session. Stay updated. You will keep getting updates if you follow the page. So you know what to do next, and see you soon. So a very good night. Have an absolute amazing week. Bye bye. Bye. I'm Good gonna night. Thank bye. you. Good night. Good night.